Veena, from you. Okay, one by one. Kalpana, Veena, and then Yes, everyone. Hello, my name is Kalpana. I'm from UK. I live in Peterborough. Aha. Okay, next, one by one, please. Everyone, because I'm 2, 3, Ashik. 5, 10 minutes we need so that everybody joins in. Yeah. I'm Ashik Ibrahim. I'm from Dubai. I joined a couple of courses in the past, but couldn't work out well. So I seen your videos in YouTube and found very effective. So thought of joining a crash course. Oh, so nice of you. First from London, second from Dubai. Oh, great. Yes, next one, please. May I? Yeah. Hello everyone. I'm Shweta Surbe. I'm from Munich. New I'm Delhi. currently with A2 class, but thought of doing A1 crash course. So don't worry if you have already done A1, A2, B1, and maybe I will not surprise if someone says that I have done MA in German, sir. I want to join your A1. So because yeah, one of the friends told me the same actually. So please next. Okay, sir. Hello, Susaman. Ich bin Meenakshi here. Ich wohne in, ich komme aus Gujarat. Ich wohne in Anand. Okay, Anand. Yeah, next. Hello everyone. My name is Deepak Tanwar. I am living in Zurich, Switzerland. I was Devkaran sir's first student in 2012, and I'm again doing the crash course in Europe. Okay, great. Next. So what have you done? Your name and Hello, your sir. living place. That's it. Yeah, good. Next. Ja, ich heiße Santosh Kamble. Ich wohne Miraj, Maharashtra. I complete my A2 also, but I repeated joining this class. Okay. Next. Hello, good morning everyone. Yeah. Guten Morgen. Hallo. Ich bin Gayatri. Ich komme aus India. Jetzt ich bin ohne in Germany. Jetzt ich A1 ich bin in Deutschland bekommen, aber auch ich einmal A1 Crash Course bekommen, so ich jetzt join das Okay. Yeah. intensive course. वंडरबार, जे गुड. आप ज्यादा जर्मन बोलोगे तो भाई आप डरा दोगे कुछ लोगों को. Yeah, next. Angel. Your name, Ali living place. Guten, Yeah, and where Guten from? Morgen, Ali Sujaman. Ich heiße Sanjay Godara. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Shimla. Super, sehr gut. Ich kann Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Perfect. Sehr gut. Next. Danke. Bitte schon. Hallo alles zusammen, ich heiße Hasibul Hassan, ich komme aus Bangladesch, ich wohne in Dhaka, ich habe schon A2 gemacht. Aha. So Bangladesh next. Okay, great. Next. Hello sir, good morning. Morgan. Good morning. Ich bin Suman Sen. Ich komme aus Indien. Ich wohne Rajasthan in Jaipur. Aha. Okay, perfect. Hallo, guten Morgen, alle zusammen. Ich heiße Sultan. Ich komme aus Sikar aus Rajasthan. Ich studiere B1 von ELS Jaipur. Perfect. Okay. Next. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Sir. Ich heiße Shashi Singh. Ich komme aus Delhi. Ich wohne in Mayur. Ich habe meine A1 gemacht. Okay, perfect. So नाम है वो है और वो. आपका नाम कहाँ से हो, कहाँ रहते हो. Perfect. That is also enough. Next, please. My name is Shahrukh Khan.
हैंड रेज भी कर सकते हो, लोगों को पता रहे कि ये बोलने वाले हैं। नेक्स्ट, यस। My name is Shahrukh Khan. Is from House Seeker. Is born in Jaipur, and danke sir. Perfect. Very nice. Guten Morgen alle zusammen. Ich heiße Mamta. Ich wohne in Nagpur. Ich bin 44 Jahre alt. Ja. Ich bin Hausfrau. Okay. Ich habe 2 Kinder. Ja. Ich habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. ओके, nur 3 Informationen. नाम है woher und wo. आपका नाम कहाँ से हो और कहाँ रहते हो, ताकि अपना टाइम भी ज्यादा नहीं जाए. यस, नेक्स्ट. Hallo, guten Tag, alle zusammen. Ich heiße Neeraj Saini. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Dankeschön. ठीक है. आपके बैकग्राउंड में नॉइज से पता चलता है कोई और भी बैठा है आपके पास, और मोबाइल उसका भी ऑन है. ओके, नेक्स्ट. Hallo, guten Morgen. Ich bin Shivani. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Hyderabad. Okay, perfect. Hyderabad. Hello, good morning all. I'm Swati from Delhi. From Delhi. Okay, perfect. Okay, next. Hello, guten Morgen alle zusammen. Mein Name ist Durgesh Saini. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Okay, perfect. Hallo, guten Morgen. Ich komme aus Bhilwara. Aus? Bhilwara, Rajasthan. Bhilwara, Rajasthan. Okay, perfect. Okay, next. Ich heiße Mudit Tiwari. Ich komme aus Sadarshah, Rajasthan. Ich wohne in Jaipur, Rajasthan. Okay, perfect. Next. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Raviteja. Ich komme aus Andhra Pradesh. Ich wohne in Vizag. Okay, sehr gut. Hallo, guten Morgen. Ich heiße Aslam Ali. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Jaipur. Okay, sehr gut. Next. Guten Morgen, ich bin Tarun Mishra. Ich wohne in Berlin. Ich komme aus Amritsar, Punjab. Perfect. Okay, Berlin. Yeah, next. आई एम ट्राइंग टू नो एक्चुअली कि आप लोगों की लोकेशंस भी कहाँ कहाँ हैं, उसका भी मुझे आइडिया लग रहा है. ओके, नेक्स्ट. Hi sir, my name is Deep Lamba. I'm from Gujarat and I'm staying in Jamnagar. Thank you. Jamnagar. Okay, Gujarat. Okay, perfect. Next. Hallo, guten Tag alle. Ich heiße Vishal. Ich komme aus Maharashtra, aus Nagpur. Nagpur. Okay. Yeah. Next. Yeshon. Good morning everyone. I'm Wendy. I'm from Bangalore and currently in Hamburg. In Hamburg. Okay. Yeah. Next. Hello everyone. My name is Rao Ehsan. I am from India but currently in Turkey studying bachelor's. Okay. From Turkey right now. You are joining from Turkey. Okay. Next. My name is Sujit Kumar. I from UP. I am BA German first year student in MSU. Yeah. Okay. Next. Hallo, mein Name ich heiße Sanya. Ich komme aus Rajasthan und ich wohne auch in Rajasthan. Okay. Yeah. So almost done. Good. We can start now. Just a moment. So we should start because A1 का मैंने जो टारगेट लिया है कि हम लोग अगले 4-5 दिन में इसको मेन कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हम लोग कर पाएँ, ये अपना प्लान है. और लेकिन भाग भाग के नहीं करेंगे, चिंता मत करना, जितना होगा उतना करेंगे. मेरे दिमाग में पिक्चर है कि क्या क्या हमको करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. आपने बहुत कुछ कर भी रखा है तो भी चिंता मत करना एक बार, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये A1 करने वाले हैं हम लोग. ऑफ कोर्स तो A1 पे ही स्टिक करेंगे, उसी पे रहेंगे हम लोग. कोई A2 B1 की बात नहीं करने वाला हूँ, और उसमें भी एकदम बेसिक से, मतलब ABCD से स्टार्ट करूँगा.
जो एकदम नए हैं हो सकता है कि उनको लगे यार ABCD, लेकिन पर्पज यही है कि हम लोग ABCD से स्टार्ट करें। सो ABCD से स्टार्ट करता हूं इसको। अभी सबसे पहले हम लोग ABCD लेंगे, रीडिंग के रूल्स लेंगे और फिर कुछ वर्ड्स को रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे। पहला हमारा यही पर्पज है। सबसे पहला ABCD आपको पता चल जाए। ABCD के बाद में ABCD जर्मन अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो भी लूंगा मैं, और ये करते हैं। तो गुड, ABCD की बात करते हैं सबसे पहले। यू ऑलरेडी नो A B C D from A to Z, ABCD इज सेम, ठीक है। सो कुछ तो फोटो मैंने यहां पे पहले से ही रख रखी है कि मेरे को लिखना भी नहीं पड़े इतना, ताकि हमारा टाइम भी बचेगा और फटक से हम लोग केवल आपको कुछ चीजें केवल दिखाने की हैं। मोमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस वन फर्स्ट ABCD फ्रॉम A to Z, it is the same. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z U U etc. So in total there are 30 alphabets. जर्मन में 30 है, इंग्लिश में अपने 26 होते हैं। दिखने में A से Z तक आप देखोगे तो दे आर कंप्लीटली सेम। प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट किसी का थोड़ा मिलेगा भी। सो स्पेशल कैरेक्टर्स यू विल नोटिस द स्पेशल वन। स्पेशल में वैसे देखो तो आपको ये दिखने में A है लेकिन बोलने में A है। सो ऐसे देखो तो सारे ही स्पेशल है, बट आपको डराती नहीं जर्मन, बिकॉज पहली क्लास से आपने ऑलरेडी देखी है। यू नो ABCD। आपको चाइनीज दिखाए तो आप कहते हो कि नहीं होगा पहले ही, लेकिन जर्मन दिखाओ तो आपको एक बार तो लगेगा ये तो इंग्लिश ही है, फिर बताना पड़ेगा नहीं इंग्लिश नहीं, ये जर्मन है। ओह कोई बात नहीं, आती है मुझे थोड़ी तो। सो डर नहीं लगेगा आपको। बट स्पेशल कैरेक्टर्स जो है इसमें जेड के बाद में ये, यो, यू etc. जब प्रोनाउंसिएशन की बात आएगी, कुछ मैं रीडिंग के रूल्स बताऊंगा, और आप ऑलरेडी जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में हो तो आप कहोगे अच्छा मुटिस बोल रहे हो, यहां तो मैंने लोगों को सुना है मुटिक कहते हुए, तो आप मुस्कुराना। लेकिन जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में भी जर्मन को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हमारे हिंदी बेल्ट में भी हिंदी को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट वी विल बी लर्निंग स्टैंडर्ड जर्मन। स्टैंडर्ड जर्मन मीन्स जिसको जर्मनी के जो टॉप विद्वान हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये जो खिचड़ी बना रखी है लैंग्वेज को, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है इन कमिंग ईयर्स, बिकॉज इवन जर्मन्स डू नॉट अंडरस्टैंड जर्मन्स, राइट, बिकॉज दे आर स्पीकिंग डिफरेंटली समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, बिकॉज कभी कभी उनका डायलेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। सो फॉर दैट they have decided now to follow standardized German, and उसके कुछ रूल्स बनाए हैं, और हम जो सीख रहे हैं वो स्टैंडर्ड जर्मन सीख रहे हैं। उसको जर्मन में बोलते हैं हॉखडॉइच। तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो जर्मन एकदम परफेक्ट जर्मन है। हो सकता है कि भाई मैं जर्मन तो हूं नहीं, कुछ प्रोनाउंसिएशन का भी मैं थोड़ा 19-20 कर दूं, सो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो मुझे पहले डर लगता था कभी, जब तक मैंने MA नहीं किया था जर्मन में, राइट। अभी मेरा PhD चल रहा है और मैंने जर्मन जो गोएथे इंस्टीट्यूट के लेवल्स हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो सारे मैंने कर रखे हैं। तो आपको गलत तो नहीं सिखाऊंगा एटलीस्ट, ओके। कोशिश करूंगा कि गलत नहीं सिखाऊं, कोई चीज सिखा भी दूं, ओके नहीं। सो A B C D व्हेन यू सी दे सीम्स ऑलमोस्ट द सेम दिखने में, बट जो स्पेशल है उनको मैं हाईलाइट करता हूं। दिस इज A। जिसको हाईलाइट किया मैंने वो बहुत ही आपको दिल पे वैसा का वैसा ही लेना है, बिकॉज इफ यू डोंट लिसन, उसको स्पेशली आप हाईलाइट मार्क नहीं करोगे, देन आप ब्लंडर्स करोगे, इसलिए उनको हाईलाइट कर रहा हूं। बिकॉज यू से समटाइम्स ए, इंग्लिश के हिसाब से इफ यू से ए
people will understand you are talking about this, because in German this is A. So that's why you have to mark it. कुछ कुछ को specially highlight करना है. This is A, this is A, and then this one. In English it is I. In English it is E. But when you say E, people will understand this one. So that's why I am marking. And then otherwise only little difference. B becomes Be, C becomes Se, D becomes De. So you can understand, okay, किस लाइन पे ये जा रहा है. So वो परेशान नहीं करते. They are almost same. F is F only. G becomes Ge. Okay, so maybe you can mark. Yacht is different. हमारी आदत है इसको J बोलने की, but it is yacht, so it's special. K becomes Ka. L, M, N, O, almost same. P, P, Q, Q, R, 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 almost same, no problem. S, T, U. This is important because you are habitual to read it you, but when you say you, people will understand this one. This is actually you in German, so that's why you have to see. This is U, right? It's U, but okay, this was the sound U. So then this is special. Fau. कभी कभी आपको लगेगा कि लोग तो इसको वह भी बोल रहे हैं, वो इंग्लिश का वर्ड या किसी दूसरी लैंग्वेज का वर्ड एज इट इज एक्सेप्ट किया. इन दैट केस दे समटाइम्स ऑल्सो रीड इट व, बट नॉर्मली दे विल रीड इट फै, एंड इट इज फाउ एज ए अल्फाबेट. इसका नाम जो है वो फाउ है, और इसके रीडिंग के रूल्स में मैं इसके बाद में आऊंगा. दिस इज वे, सो वे इक्स इक्स इप्सिलोन. द last line is all, means different you can say, because epsilon काफी बड़ा है भाई, ये तो पूरा स्पेलिंग लग रही है, कोई वर्ड लग रहा है. epsilon. Seth, ये you can read it A or ye, both. O is actually yo, because of these 2 points they are umlauts. ये जो दो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, इनको उमलाउट्स बोलते हैं. उमलाउट. सो मैं कभी उमलाउट बोलूं तो आपको समझना है कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, 2 पॉइंट्स की. एंड दिस इज यू और यू, एंड दिस इज एचसेथ. एचसेथ इज एक्चुअली इक्वल टू डबल एस. पहली क्लास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. पहली क्लास का मतलब अभी जो 2 आवर्स, जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये रीडिंग का बेस है. आपको एक बार पूरे A1 में अगर किसी ने और कुछ खास नहीं सीखा और रीडिंग प्रॉपर सीख ली, तो भी लोगों को लगेगा कि क्या जर्मन बोलता है. बिकॉज जहां भी कुछ पढ़ोगे तो रीड करोगे, आप तो समझ में नहीं आए तो भी रीड करना पड़ता है. यू गो इन मार्केट और इन योर कॉप, राइट, यू राइट समथिंग, यू लिसन एंड देन ट्राई टू राइट. सो दिस इज योर alphabet from A to Z, the basic ABCD. These are the names of alphabets, and now we will see how to read. हम इसको read कैसे करेंगे उसको देखेंगे, because alphabet as a alphabet it is day, लेकिन जब word में इसको देखेंगे हम लोग तो इसको day कभी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ड. All the consonants become neutral, all the consonants. सो ये अल्फाबेट के लिए हमको इनको लर्न करना है. इनको लर्न इसलिए भी करना है बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू राइट, स्पेलिंग बताना पड़ता है किसी को. माय नेम इज देव, और किसी ने बोला नौखैनमाल फिर से बोलो, तो मैं बोलूंगा देव, बट उसको फिर भी नहीं सुन रहा, तो स्पेलिंग तो बताऊंगा. देन आई विल से डे ए फाउ. डे तो ओरिजिनल अल्फाबेट यू नीड, देन डे ए and fau, de, a and fau. If you know the names of alphabet, then only you can. Okay, then I come to the basic reading rules. Just a moment.
the basic reading rules. In German we call it Aussprache. Okay, but कोई बोले Aussprache को बोला क्यों ऐसे? So उसका तो रूल है, रीडिंग के रूल, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग. Au, A U is au. So one by one I will take most important rules. This is a. This is also a. Some 10-15 rules you will read, और उसके बाद में हम लोग इसको वर्ड्स को भी रीड करने की कोशिश करेंगे. So this is a and this is also a. It means both are similar in sound. Both are similar. Suppose if I say what is this, it is a na, ana, ana. A and double A, that is a and double a. A और double A का दोनों का साउंड सेम ही होता है. Suppose this is the word par, because this is a, that's why P के साथ a. Originally P was pay. Originally P was pay, but in the word it becomes neutral. Consonant की नहीं चलती, मात्रा वोवल डिसाइड करता है. Yes, suppose this is the word. As a alphabet it is day, but in word it becomes neutral. It becomes day only. So this is par, har, na, a. This is a and this is also a. This is I, and this is also I. Both are similar in sound. So if this is the word my, and if I say this my, same, because both are similar in sound. First two same, second two same. इनको ऐसे ही रीड करना है. अब इनको बार बार आप देखोगे तो कुछ कुछ आपको याद रहने लग जाएंगे. Don't worry. Then I, this is E, and this is also E. We can read both same. Suppose this is the word E da. D is da as a word. Originally it was day, but da. So E da a, ida. And this one ni, na, n is na, and then e, ni. So almost same in sound. So third rule. Next I will write 5 rules here on this page. Next is ch. Ch has basically 2 sounds. There are more, but ch is kh. This is the sound. Before ch, if you see a, o and u, mainly if you see these 3, it will be kh. Otherwise it will be sh. So this is nak, because a is there. Nak. This one dok. Bak. So kh sound will be there. ch all together. ch को एक साथ पढ़ोगे तो ख का साउंड निकलेगा. और अगर ch से पहले a o u ना हो, then it will be sh. Like if I say sh, right? Sh, dish. So sound will be there, not kh. It will be spresh. Sh. Why a? Because e is a. I will write spresh. Sh. So here also sh, not kh. Because when I say a o u, इसको ऐसे मत समझ लेना कि कोई भी vowel नहीं, only a o u. These 3 vowels will make ch, kh, otherwise it is sh. Yes. Then one more I will write here. Next one
is A, or maybe I can write D here. D is normally D, and D at the end sounds like T, like das ist da, daku, disco. So डे only, आई लग गया तो डी बन गया डिस्को, ए लगा तो आ बन गया. ओरिजिनली डी वाज डे, लेकिन यहां पे तो डे ही बना है. वर्ड में इसको आते ही न्यूट्रल होना पड़ता है. सो डी बिकम्स ड. सो डाकू डिस्को, ओरिजिनली इट इज ड. बट इफ डी कम्स एट द एंड लाइक दिस वन, किंट, ट, हल्का सा ट, आधा लिखा है मैंने, किंट, किंट. So you can say like this, kint, t. So this is D. So rule number first, A, I, E, CH, sometimes kh, sometimes sh. Although CH will be also available in some other combinations. कभी CH के साथ CHS, CH की पॉसिबिलिटी है CHS, PCHS, DCHS और ओनली SCH. D वाला बहुत रेयर है. सो CHS if comes all together it will be x, x, like fuchs. Now CH sh भी नहीं है, ख भी नहीं है, it is fuchs. CHS ऑल टुगेदर, और कुछ नहीं दिखता, फिर उसी का कॉम्बिनेशन एक साथ दिख जाए तो इट विल बी फुक्स. TSCH विल बी च, लाइक चाचा, चाची, च. सो TSCH, दिस इज च. नाउ ए, चा. इफ आई राइट अगेन it is cha cha, because a becomes a, so cha cha. Then SCH will be again sh, like simple CH. SCH will be always sh. So for example shoe. और भी देखेंगे हम लोग. मैं बार बार आपको इस तरह के वर्ड्स दिखाऊंगा अगले 3-4-5 दिन में. खूब सारे वर्ड्स दिखाऊंगा और हर बार हम आपको बीच बीच में याद भी दिलाऊंगा कि वो रूल, और आपको भी नोटिस करना है उसको. सो नेक्स्ट पॉइंट. सो टिल नाउ वी हैव सीन A, double A, AI, EI, then A, we have not spoken. Okay, then CH, SCH, TSCH or CHS. D and D at the end. A, this is also A, both are I. CH is Kh. If before CH AOU is there, CH is Sh. If AOU is not there, SCH is always Sh. TSCH is Ch. CHS is X. This one, D is D and D at the end sounds like T. ये अभी तक ये किए हमने. E, I is E and I, E is E. Yes. उसके बाद में बात करेंगे A की. A, double A, AR, AN, AL. E is also very popular. बार बार दिखता है आपको वर्ड्स में. E is normally A in ABCD also. You see E is A only. Double E is also A. But if E comes at the end, it is A. Like Ella. Like Emil or Emila. So it is A only. But this will be T. T खुद भी T था.
टी वॉज ऑल्सो टे, बट वेन टी इज इन द वर्ड में आते ही इसकी मात्रा उठ गई और फिर इनकी वापस वही लग गई, तो फाइनली इट इज टे ओनली. ई इज अ, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज मख एंड दिस इज मख. इसको मख क्यों बोला? CH का रूल. CH is kh if before CH AOU is there, and here before CH A, so this is mach and a mach. mach जर्मन में साइलेंट कुछ रेयरली होता है, अदरवाइज जर्मन एकदम देसी लैंग्वेज है, जैसा लिख दिया वैसे ही बोलता है. ऐसे नहीं है कि वो कोई फ्रेंच की तरह या फिर इंग्लिश की तरह लिख रहे कुछ है और गायब हो गया बीच में. रेस्टोरेंट लिखा और रेस्टोरेंट इतना ही बोला, बाकी कहां गया ढूंढ रहे, ऐसा नहीं. राइट. सो राइट को भी, जैसे ये राइट तो दूसरा था, लेकिन ये वाला राइट अगर कहीं हो तो इंग्लिश में तो राइट लिखते हैं, ट पे तो खत्म हो जाना चाहिए बट लिखते हो और तो आदमी बूढ़ा हो जाए सीखता सीखता ही. ऐसा काम नहीं करना अपन को. तो ऐसी लैंग्वेज सीखनी है जो एक साल में तो आपको, आप चैंपियन हो जाओ, मास्टर हो जाओ उसके, एटलीस्ट अपना काम चलाने लायक जॉब कर सको. ये तो पक्का ही है एक साल में, इतनी टफ नहीं है जर्मन. ER इज अर, EN इज अन, EL इज अल. सो इट वॉज मख है, इसी के आगे मैंने ER लगा दिया तो मखर. ख तो था ही, ER अर, मखर. मखन, मिटल, EL इज अल, सो मिटल. ये E का कॉम्बिनेशन, E आ गया, CH आ गया. E और CH बार बार आने वाले हैं. देन G, देर आर 3 रूल्स फॉर G. फर्स्ट G is G, normally it's normal, G is G, but if G comes at the end it sounds like K. जैसे इसको आप बोलोगे तो गूट, गूट, ग ऊ की मात्रा लग गई, सो गूट. ओरिजिनली गे तो गे है, लेकिन मात्रा तो हट जाती है कॉन्सोनेंट्स की. ज्यादातर तो कॉन्सोनेंट्स ही हैं. इन जर्मन वी हैव 30 अल्फाबेट्स, 22 कॉन्सोनेंट्स प्लस 8 वोवल्स. 22, 21 तो इंग्लिश वाले सेम, एंड दो प्लस है वो एक्सेट है, ये कॉन्सोनेंट है. 8 में से 5 तो इंग्लिश वाले सेम, AEIOU जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट. आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये तो सेम है, प्लस 3 स्पेशल, ये, यो, यू. सो टोटल 8 वोवल्स एंड 22 कॉन्सोनेंट्स. इन टोटल 30 अल्फाबेट्स ये है हमारे पास. सो Z इज ग, और उसके साथ में ये वोवल लग गया ऊ, सो गूट, ट. एंड इफ यू राइट ए वर्ड लाइक TAG, तो यहां पे G ग नहीं होगा, Z एट द एंड साउंड्स लाइक क, टाक, टाक, क. मतलब इसका साउंड ऐसा सुनेगा आपको, टाक, क. ये डबल के मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डबल कॉन्सोनेंट को भी हाफ ही बोलते हैं, ये भी एक रूल है. आई विल कम टू दिस. सो Z is G, Z is K, tak. And if IZ is there at the end, it will be ish. IZ will be ish. Like, suppose this is the word, it will be ho-nish. G को ना तो ग बोलेंगे ना क बोलेंगे, ये होगा ish. Because IZ all together at the end, ये मार्क किया, इसका मतलब है ये लास्ट में आना चाहिए. Then it will be honish. Okay, so these are the rules. Next few more. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, अगर किसी वर्ड में ग आता है या जी है, तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि वहाँ पे हमें का बोलना है या ग यूज करना है? मींस गो बोलना है या आपको तो जी को ग ही बोलना है. क तो तब बोलेंगे जब जी लास्ट में आएगा. अदरवाइज इन द बिगिनिंग, मिडल, इट विल बी ग ओनली. इस मार्क का मतलब ये लगाया मैंने, इसका मतलब है इफ जी इज कमिंग एट द एंड, देन ओनली इट इज क.
और इसका मतलब एट द एंड आई जी, देन इट इज इश, और मोस्टली तो जी को गई बोलेंगे, बिकॉज कभी कभी जी लास्ट में आएगा, कभी कभी आई जी के कॉम्बिनेशन में आएगा, अदरवाइज तो इसको हमको गई बोलना है। इसलिए तो जर्मन टफ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तो वही आता है। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, यस प्लीज। सर जैसे शू है ये, अब जैसे मुझे अगर लिखना है शू, तो मैं CH के साथ लिखूंगा या SCH के साथ लिखूंगा? आप तो अभी लिखोगे ही नहीं, आप लगातार देखोगे। हम लोग जब A1 में होते हैं, हम लोगों के लिखे हुए देखते हैं, राइट, समझ रहे हो आप, क्योंकि बहुत सारे साउंड्स ओवरलैपिंग होते हैं, और यार ये तो इसका भी निकलता है, ये तो उसका भी निकलता है। सो व्हेन यू रीड बेसिक वर्ड्स, ऑटोमेटिकली यू डेवलप दिस फीलिंग। सो आपको वर्ड्स लर्न करते करते आइडिया लग जाएगा, और बहुत राइट। आप अपने वर्ड तो हम बनाएंगे नहीं, हम लोग जो कॉमन वर्ड्स सीखेंगे, 1000 वर्ड्स का मान लो आपका A1 में 1500 का जो भी होता है, वो सीखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से वर्ड कैसे लिखे जाते हैं। और जब लोग लिखेंगे तो आपको पढ़ना इस तरीके से है। ओके, ठीक है, यस। जी के बाद में H, MNO P Q R, okay, R, then S U, then Ye U Yo, and then double consonants, maybe like this, and then maybe umlaut part. H will be hai, H is hai, like suppose this is the word, it is हार, तो H को है पढ़ रहे हैं हम लोग, हार। सपोज हांट, हांट, हल्का सा टे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डी का रूल था, डी एट द एंड साउंड्स लाइक ट, सो इट इज हांट, बट है पढ़ रहा हूं इसको मैं। हिंट, आई होगा तो हिंट हो जाएगा, यू होगा तो हुंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल रीडिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन एच को तो है पढ़ रहा हूं मैं। बट इफ एच कम्स इन द मिडल, most of the time it will be silent. For example, suppose this is the word won, H को नहीं पढ़ा मैंने, H in the middle is silent normally. Normally इसलिए लगा रहा हूं एडिशनल, बिकॉज कभी कभी क्या होगा, H बीच में आएगा और उसके दोनों तरफ वोवल्स आएंगे, उस टाइम पे H को हम फिर है पढ़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये वाला वर्ड है, तो इसमें H बीच में आ रहा है, फिर भी हम इसको है पढ़ेंगे गेहन। कई लोग इसको गेन भी बोलते हैं, लेकिन H बीच में आए और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट वोवल आए दोनों तरफ, तब हम उसको वापस है पढ़ते हैं। बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल रियलाइज H इन द मिडल इज साइलेंट, बिकॉज नॉर्मली एक तरफ वोवल होता है, एक तरफ नहीं होता। सो दिस इज वोन ओनली, वोन, राइट? So H has 3 sounds, ह, silent, ह, तो यू ही एक तरह से 3 रूल हो गए इसके। This is J according to German and in according to English, and in German it is yacht, and you will just read it yeah. बाकी सब silent, consonant है ना, so consonant की मात्रा वात्रा सब गायब हो जाती है। So if I say read it, it is या, या, and K in German we read it ka, but ka only, मात्रा तो साइलेंट हो जाती है कॉन्सोनेंट में। R is re, but if R comes at the end it will be ar, and if ER is also there, then also it is ar. Suppose I write this word, it is Ram, re a ra में राम। M और N का ओरिजिनल जो साउंड है, बेस साउंड है, वो मैं है, मैं।
न, वही पढ़ेंगे हम लोग. तो राम. But suppose if I say what is this, it will be nu ar. R will be ar at the end. So it is nu ar, nu ar. इसको nur मत कर देना. It is nu and ar, nu ar. Like suppose another word, nature के लिए word आता है नाटुअर. नाटुअर, अर, नाटुअर, नाटुर मत कर देना, नाटुअर. ER will be ar. बट इफ ER से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है देन वो एयर की तरह आता है. और कई बार वो आपको एयर, हवा, एयर की तरह सुनेगा. शुरू में आपको एयर की तरह सुनेगा, ER से स्टार्ट हो रहा है तो एर या एयर. बट इन द मिडल और एट द एंड इट विल बी अर ओनली. वर्ड लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा. S is Z and S is also S. S will be always Z in most of the cases, right? या तो दो ऑप्शन है वैसे तो Z भी हो सकता है और S भी हो सकता है, but it will be Z if after S any vowel is there. We have 8 vowels. So A, E, O, U, and then special 3 Ye, Yo, U. आपको मैं अभी रीडिंग के रूल लिखवा रहा हूं, तो ये क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही. रीडिंग के रूल लिखवाए हमको. ओके या सर, एक्सक्यूज मी सर. हेलो. यस प्लीज. So sir, 22 letters are the same. Which are the different ones you mentioned? Vowels you've told, but which are the letters which are different? The consonants from English. All the remaining are consonants, right? Right. So I am telling you but the English language, from English language you mentioned, right, that there are some different ones from English. Like in the vowels you added that A, E, I, O, U is the same and 3 are different. In consonants also you mentioned that some are same, the rest are different. Which ones did you mention? I missed that. Okay, I will show you the screen again, the first one. Just a moment. Sure. Okay sir. Yeah. In first slide we show actually how to read ABCD. So there the consonant and vowels, everything was there. I'll show you again, don't worry. So ABCD में हमने देखा A, B, C, D. So C becomes C, D becomes D, right? So इनको मैं अलग नहीं मान रहा because थोड़ा सा ही फर्क है, A का साउंड का फर्क है बस. So इसको मैंने एक ही माना है इसको. बट वापस से एक बार आपको दिखाता हूँ. जस्ट ए मोमेंट. ओके, placed here. Yes, ये वाला. So B becomes B. तो वैसे तो ये डिफरेंट हो गया, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसको रीड करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सिमिलर सा ही है, ए की मात्रा लग रही है. सो B becomes B, C becomes C, D becomes D, एंड देन F. F का भी बेस्ट साउंड फे ही है. कहीं लिखेंगे अपन तो फे ही साउंड आएगा. तो इसको भी हम डिफरेंट नहीं मान रहे, इसको डिफरेंट मान सकते हैं. ये गे है और वैसे हम लोग क्या करते हैं, गे ही पढ़ते हैं क्या, तो फिर तो ये भी डिफरेंट नहीं. वैसे ही हो गया. हा, उसको अपन एच पढ़ते हैं तो यहां हा, तो है का साउंड आएगा. योट, इसको डिफरेंट मान सकते हो आप, क्योंकि वहां पे तो ये जय साउंड करता है और यहां पे ये करता है, तो साउंड डिफरेंट हो गया. तो इसको आप एज ए डिफरेंट कॉन्सोनेंट कर सकते हो. के, एल, एम, एन, ओ सेम ही है, पे, को सेम है. इसको आप डिफरेंट कह सकते हो. टी, उ, इसको डिफरेंट कह सकते हो, क्योंकि वी का फाउ बन गया, तो ये थोड़ा डिफरेंट है भाई, कहां पे वी था और कहां फाउ आ गया. सो दिस यू कैन से डिफरेंट. हियर वे,
वैसे भी W का वही तो साउंड आएगा, X. इप्सिलॉन इज डिफरेंट, Y, और इसका साउंड होगा E, इप्सिलॉन. सेथ ये डिफरेंट है, एंड एच सेथ ये तो इंग्लिश में है ही नहीं. सो ये जो है ये आपका किस किस तरह का क्या साउंड होगा वो सब आपको बार बार मैं बीच बीच में याद दिलाऊंगा आपको कि हमने क्या किया है और क्या डिफरेंट है. रीडिंग के रूल्स भी जो आपको बताए हैं वो भी एक बार वापस बताऊंगा बीच बीच में मैं, जहां हम लोग रीडिंग की बात करने वाले हैं अभी. ओके, सो पुराना वाला इसमें चला गया है. आपको फटाक से एक बार डिवीजन भी हो जाएगा. आ, आई, ई, यू कैन से ई. सिमिलर मान लेते हैं, इन दोनों को सिमिलर मान लेते हैं आई, एंड ये दोनों सिमिलर मान लेते हैं आ. देन CH को पहले लिख रहा हूं मैं, CH, CHS, SCH, TSCH. CH was ख, this was sh. लेकिन ख only if A, O, U is there, otherwise sh. CHS will be always x, like this. SCH will be sh and TSCH will be ch. तो ये CH के कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे CH के कॉम्बिनेशंस हो गए. ओके, देन D, एंड देन D इज ड, फिर Z करेंगे. D इज ड एंड D एट द एंड इज ट. G इज ग, Z एट द एंड इज क. लाइक इसीलिए यू से गुटन टाक, गुटन टाक क. ये साउंड जो टाक का है ये वाला साउंड होगा टाक. एंड यहां पे जी गए है और यहां पे जी क है. रूल इज दिस, आई जी विल बी इश इफ इट कम्स एट द एंड, तभी. ओके, देन एच का साउंड किया हमने तीन तरह से. एच है, एच बीच में आए तो साइलेंट, बट एच की दोनों तरफ अगर वोवल आ जाए देन अगेन है. ये किया हमने. ओके, एच के बाद में हम लोग जे को हम बोलते हैं य. के इज क लिखने की जरूरत नहीं है. LMNO लिखने की जरूरत नहीं है. ओ को ओ ही बोल रहे हैं हम लोग. कु एर. आर का रूल बताया मैंने आपको. आर इज रे नॉर्मली, एट द एंड इट इज अर. और ई आर आए तो शुरू में आए तो एयर, और एर और एयर के हिसाब से आप साउंड करोगे. लेकिन बीच में और लास्ट में अगर कहीं पे आए तो उसको अर साउंड करना अपन को. आर अकेला भी अर है लास्ट में. ओके, देन एस की बात करी हमने. एस इज ज एंड एस इज स. एस के बाद में कोई भी वोवल आ जाए तब इसको ज बना देगा वो. फॉर एग्जाम्पल आ, ए, ई, ओ, उ, ये, यो एंड यू, इसको वो ज बना देगा, अदरवाइज स रहेगा. जैसे मान लो कोई बोले इसको क्या बोलूं, जा, बहुत देखे तेरे जैसे, जा ही बोलेंगे जा. लेकिन अगर कोई बोले इसको क्या बोलोगे, जी. ये है ना, ये तो अगर आपको जी बोलना हो यू हैव टू राइट अगेन जी. इट इज जी. ओके, एस आएगा इसमें, एस आएगा, एस जी. एंशोल्डिगोंग, हेलो, यस, जी ये हुआ है. वो तो जिगी हो गया पहले तो. जी ग लिखने से तो ग बन जाता है. डबल एस विल रिमेन ऑलवेज है. इसके आगे पीछे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल
फूस, फूस, ये सही रहेगा, कुछ आगे आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता इसके। लेकिन एस फॉर एग्जाम्पल इट इज ग्लास, बिकॉज आफ्टर एस वोवल इज नॉट देयर। इफ आफ्टर एस वोवल इज देयर देन ओनली एस बिकम्स जय। जय तो तभी बनता है, अदरवाइज जय नहीं बनता। ये रूल है इसका। So video is stuck. Yes, please. Video is. Video clear नहीं है? Yeah, the streaming is stuck now. It is happening. No, so it's clear. It's clear. It's okay for us maybe. Yes, it is. Yes, Maybe वीडियो चल रहा है सर। चल रहा है ना, वो नेटवर्क का इश्यू होता होगा कभी कभी किसी किसी का, मेरी तरफ होना नहीं चाहिए जनरली, फिर भी आप बताना जरूर मेरे को अगर ऐसा इश्यू दिखे तो बार बार। सो ये ABCD के हम लोग ABCD से जो रीडिंग के रूल्स हैं वो मोटे मोटे रूल्स यहाँ पे मैंने लिख दिए। इसके अलावा 3-4 छोटे छोटे और बताता हूँ। यस प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट, ओके, नो प्रॉब्लम। Yeah, so these are some basic rules and now some more I'll take. फिर आप लोगों के ये जितने भी जो भी डायलॉग यहाँ पे होगा, जो भी वीडियो क्लास जो भी हो रही है यहाँ पे, सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। जो मैं बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। सो आप चिंता नहीं करना, लास्ट में आपको ये भी भेजूंगा मैं। सो ABCD के हमने रूल्स देखे, इसके अलावा लास्ट में इसको फै साउंड करेंगे, वाई को ई साउंड करेंगे हम लोग, जेड को हम लोग ये TS का साउंड, कभी कभी ST और SP का साउंड भी आपको दिखेगा। ST एक साथ आए तो इसको बोलते हैं स्प, ST एक साथ आए तो स्ट। तो अलग से कोई बात नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि बहुत बार ऐसा दिखता है आपको, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या करें इसको। V is fair and that's why we read it farter. ER is so farter and it is E। कुछ लोग इसको U भी बोलते हैं, E। आपने तो E बोल लो, सिंपल है, झंझट में पढ़ना ही नहीं। इट इज, यू ऑलरेडी नो, सिस्टम। तो सिस्टम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये E है, सिस्टम। इसको जय क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जय तो तब बोलते हैं एस के बाद में वोवल आता, तो वाई तो वोवल नहीं है, सो दैट्स वाई सिस्टम। ओके, जेड इज, बोल के देखो, पेट के अंदर जाएगा कुछ, पेट के अंदर कुछ नहीं जाएगा, पेट अंदर जाएगा। बोलो, ये क्या है? सु, सु। ये क्या है? सुख, सुख। Because Z at the end sounds like ka, that's why suk, suk. What is this? Speel, speel. Okay, speel। इस वाले का बता दिया। Okay, इस वाले का इधर बता देते हैं। Steel, steel। Okay। इसके अलावा कभी कभी डबल कॉन्सोनेंट आ जाता है, ये लिख लेता हूं भूल नहीं जाऊं। कभी कभी डबल कॉन्सोनेंट आ जाता है। डबल कॉन्सोनेंट का मतलब है सपोज डबल T, डबल M, डबल N, लाइक दिस। इफ यू सी डबल कॉन्सोनेंट इट बिकम्स हाफ इन रीडिंग, लाइक इट्स मिटल, मिटल। मित्तल मत कर देना इसको, मिटल। ट पे जोर नहीं लगाना, मिटल इजीली, उस पे रुकना भी नहीं, मिटल। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज द वर्ड मन, मन। न मान मत पढ़ देना इसको, क्योंकि मान पढ़ोगे तो फिर तो ये हो जाएगा मान, बट दिस इज मन। कभी कभी तो ऐसे सुनता है जैसे कोई बोल रहा हो मन, अपना मन है ना, वैसे सुनता है ये कभी कभी, मन। न तुरंत बोलते हैं इसको। सो ये मन और ये मान, फर्क है दोनों में। सो डबल कॉन्सोनेंट, और भी बहुत वर्ड मिलेंगे आपको, बट रूल इज इफ डबल कॉन्सोनेंट इज देयर
जहां भी डबल एन, डबल पी, डबल टी कुछ भी होगा, डबल कॉन्सोनेंट बिकम्स हाफ इन रीडिंग. एंड एक और चीज जो हाफ होती है वो है अगर किसी वोवल ये स्पेशल वोवल्स में, स्पेशल वोवल्स है मतलब उमलाउट वाला जो वोवल है उससे पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो भी हाफ. लिख के बताता हूं आपको. इट बिकम्स हाफ इन रीडिंग डबल कॉन्सोनेंट. और यहां पे फॉर एग्जांपल क्यू, सपोज दिस वन, दिस इज क्यू. कयो होना चाहिए था ना, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इट इज क्यू. आई जी तो इश होता है लास्ट में. क्योनिश. सपोज कोई वर्ड है दिस वन, सो अगेन इट विल बी हाफ. वोवल ये यो यू से पहले कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए तो ये होगा म्योगन. सो हियर ऑल्सो इट बिकम्स हाफ. तो ये हाफ कर देते हैं. डबल कॉन्सोनेंट आए तो, या फिर ये वोवल जो स्पेशल वोवल्स हैं इनसे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कॉन्सोनेंट प्लस ये स्पेशल लेटर्स मेक्स इट हाफ. हाफ कीजिए मत समझ जाना इसको, राइट. ये घर जैसे मान लो सपोज ऐसा कोई है तो इसको बोलेंगे केफिस, राइट. और कुछ आएगा दिमाग में तो आपको बताऊंगा मैं. दीज आर ऑल्सो स्पेशल. दीज बोथ साउंड्स लाइक ओए, लाइक दिस इज नॉय, बिकॉज ये तो एन इज ने बट इसके आगे ऑय लग गया तो नॉय. सपोज दिस वन बोय, ऑय. एंड दिस इज ऑल्सो ऑय, like this is boy. ये वाले वर्ड्स जो भी आपको मैं अभी रीड कर करके बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारे वर्ड्स का पता नहीं है और हो सकता है कुछ खास पता ही नहीं हो वर्ड, तो आप सोच रहे हो कि अरे सर कुछ भी बोल रहे हैं. लेकिन आपको जैसे जैसे वर्ड पता चलेंगे और आप सुनोगे तो आप उसको टैली करने में बहुत हेल्प करेगा. ये कोई वर्ड तो आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एक यहां पे मैं वर्ड लेके देखता हूं, फिर वापस देख लेंगे अपने क्या है, अपने हाथ में ही है. ये तो पहली क्लास ही अपनी रीडिंग की है, ABCD होगी, अब रीडिंग की क्लास है. सपोज इसमें देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं. वैसे ही जो भी वर्ड मैं दिखा रहा हूं उसको लर्न मत कर लेना. लर्न कराने का पर्पज नहीं है आपको, केवल दिखाना है. ओके, PPT देख लेते हैं, कोई भी एक PPT, राइट. इसमें कुछ तो वर्ड तो कुछ तो मिलेगा. सो सपोज ये देखते हैं, कुछ भी दिखे, अपनों को तो कुछ भी पढ़ना है, पढ़ने से मतलब है, उसकी मीनिंग को याद मत कर लेना. ओके, ई तो ए था तो ये क्या होना चाहिए, एसन. ए और डबल एस को तो सही बोलोगे, डबल एस को जय मत कर देना, तो एसन. उंट. डी लास्ट में आए तो हल्का सा टे बोलना है. एसन उंट ट्रिंकन. ईएन को तो हम बोलोगे, एसन उंट ट्रिंकन. अब अपन को मीनिंग से मतलब नहीं है, कोई पंचायती नहीं है मीनिंग से, हमको केवल वर्ड पढ़ने की कोशिश करनी है. das ब्रोट. ओ को तो ओ ही बोलेंगे, das ब्रोट. मीनिंग याद मत करना कि इसका मतलब ब्रेड है, रोटी है, उससे अपन को मतलब नहीं है. das ब्रोटसन. CH को श बोलेंगे, ख नहीं बोलेंगे. CH को ख तो तब बोलते जब CH से पहले AOU आता, तो ये तो सही रह गया. और EN को तो अन बोलेंगे. सो das ब्रोटसन. ओके, डी बूटर.
ट पे रुकना नहीं है, डबल कॉन्सोनेंट है। So, Alright. butter. Okay. D. मार्मेलाड। ओके, देन इसको क्या पढ़ेंगे? डेयर। ई आर को एयर, सो डेयर। हो निश, आई जी को इश, हो निश, हो निश। शहद, खैर मतलब नहीं है, मीनिंग से अपन को क्या करना है। इसको म्यूसली, म्यूसली। से को जे तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जे तो तब बोलते जब एस के बाद में वोवल आए। सो म्यूसली। ओके, दी कार्टोफिल, कार्टोफिल, फिल, कार्टोफिल। फे पे रुकना नहीं है, डबल कॉन्सोनेंट है भाई। दी कार्टोफिल। Das Hansen. Das Hansen. Hansen. मैंने आपको बोला था ना, एच बीच में आए तो साइलेंट रहेगा, लेकिन सी एच तो शय होगा। सी एच को ख तो नहीं पढ़ दोगे, ख मत पढ़ देना सी एच को, क्योंकि ख तो तब पढ़ते हैं जब ए ओ यू आए। तो दस हेंशन, दस हेंशन। ए उमलाउट को यही तो पढ़ते हैं। यस सर। ए उमलाउट को ए, ओ उमलाउट को यो, और यू उमलाउट को यू, ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए इसको पढ़ दिया हमने। I'm sorry. Yes. Can you show the slide for Broschen and the reading as per how we have taken the rule? This one? Yeah, genau. So you try. Brio. Yeah, Broschen. Brutschen. When like vowels are before ch, it is written, it is read as kha. Is it okay? Please repeat. If vowels are coming before ch. Before ch, if. Kha. Okay, this is not vowel, this is consonant. He is okay. there. You got it? Then it is, yeah, then it is written as sh. Okay. Yeah. Yes, sir. Production. Yes. So what rules we are reading? जो भी हम लोग यहाँ पे रूल पढ़ रहे हैं वो आपके 99% तक सही जाने की पॉसिबिलिटी है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि शुरू में मैंने भी 5-7 ही रूल पढ़े थे, फिर स्टूडेंट्स ने पूछ पूछ के स्टूडेंट मेरे को पूछते, मैं उनको गोल मोल कर देता और अगले दिन ढूंढता, मैंने कहा अरे कल फिर पूछेगा वो, ऐसे कर करके बहुत सारे रूल इकट्ठे किए मैंने। तो अब मेरे को ऐसे लगता है कि ज्यादातर रूल सही जाते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम लोग यहाँ दूर बैठे यहाँ से सीख रहे हैं, तो हो सकता है कोई कहीं चूक हो सकती है, बट मोस्टली इट विल बी या करेक्ट। मोस्टली हियर The tomato. 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 E at the end will be tomato. The tomato. Tomato. The tomato. Plural will be tomaton. Plural की बात फिर अलग हो जाएगी। Okay, this is yogurt. The yogurt. Yogurt. H silent in the middle. H will be silent in the middle. Okay. कोई सो मत जाना, बहुत रूल इंपॉर्टेंट रूल चल रहे हैं, सो मत जाना, बीच में पानी पीने भी मत जाना। Because after S vowel is there. Case. Yes. Das E. E I is I. I. Das I. There. Kuchen. CH is kha. Kuchen. Yes. Cream cake. Torta. Torta. Choco. Chocolate. E at the end is a. So chocolate. Chocolate. The banana. The banana. Gurka. Carrot. Ta पे रुकना नहीं है, carrot.
Carota, double consonant. Apple. Apple. P S will be P. Apple. Apple. This one. The burner. H is silent. Yes, sir. H is silent. Yes. The bone. Citrone. Broccoli. D. Salami. सलामी मत बोल देना, सलामी दे दे कोई. D. Adbere. Double E is A, so D. Adbere. Okay. Pills. Paprika. They are fish. That's Rindfleisch. Rindfleisch. मैं आपको नोटिस करने के लिए बोलूंगा तो नहीं, लेकिन ये वर्ड के पहले कभी डेयर, कभी डी, कभी दास, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना. कभी तो वर्ड के पहले डेयर आ रहा है, कभी डी आ रहा है, कभी दास आ रहा है. ये दास जो होता है वो न्यूट्रल होता है, डेयर का मतलब मैस्कुलिन होता है, डी का मतलब है फेमिनिन. मतलब जो भी वर्ड आएगा जर्मन लैंग्वेज में वो या तो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है या न्यूट्रल है. उसका उस वर्ड को पहले जो आर्टिकल आ रहा है उससे पता चल रहा है. ओके, अभी नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, आप अगली बार क्या आता है आपको ध्यान आए तो देखते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत होना. डेयर डेयर आ रहा है मतलब मैस्कुलिन. सर यस प्लीज. सर जस्ट टेस्टिंग, मेरा माइक्रोफोन चल रहा है. ओके दैट्स इट, थैंक यू. ओके, सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज बिल्कुल चल रहा है माइक्रोफोन. व्हाट इज दिस? The sauerkraut. Sauerkraut. Okay. Deuner. So ये आपको मैंने रूल बताया था कि इससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है तो ये ऐसे होना चाहिए. डियो हाफ हो जाएगा, कॉन्सोनेंट बिकम्स हाफ, सो डियोनर. डियोनर मैस्कुलिन है. अच्छा, डेर आ गया मतलब मैस्कुलिन है. ओके, कोई बात नहीं. सो डेयर राइस. डी डबल एम को हाफ बोलना है, डबल कॉन्सोनेंट, तो फोमस. यस. Salat. Pizza. Okay. कुछ भी XYZ जो भी आएगा. H साइलेंट है क्या? H को तो नहीं पढ़ रहे. H is silent in the middle. तो जान है. There rot wine. That's beer. अब आप में से कई लोग तो ये देख के ही बियर पर बता देते हैं, उसको पढ़ना है, इस पे इतना ध्यान मत दो. भले ही बियर, ठीक है, उस पे ध्यान देना है. न्यूट्रल है. जाफ्ट. जे बोलेंगे इसको, जाफ्ट. CH है, मिल्श. ख तो नहीं है ना? मिल्श. यस. AOU नहीं. AOU नहीं है, इसलिए ख नहीं है. ओके. काफे. राइट. तो ये तो मैं एक बार ऐसे ही चेक करने के लिए लिखा कि जो रूल बताएं वो सही भी जा रहे हैं कि नहीं, तो ये रूल सही जाएंगे.
99% आपके सही जाने वाले हैं, चिंता मत करना। 1% में गड़बड़ वहां होगी। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश की तरह ही पढ़ना होता है, समझ रहे हो आप? जैसे मान लो कि कोई वर्ड आ गया ये, तो इसको आप बाबी पढ़ने की कोशिश करोगे, बट वो इंग्लिश में बेबी है तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो और भी अच्छी बात है। इंग्लिश वाले बहुत सारे वर्ड, मान लो ये है वर्ड, तो इसको टेयाम पढ़ने की कोशिश मत करना, इंग्लिश का वर्ड है तो उसको वैसे ही पढ़ डालना है। टीम, बेबी, मान लो कोई वर्ड आ जाए तो इसको ट्रेनिंग ही पढ़ देना है। ये इंग्लिश में भी है, जर्मन में भी है। और फिर 1% गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कभी कभी होता है कि जर्मन्स खुद कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? मतलब कि वो भी तो बाहर के वर्ड्स ले रहे होते हैं, तो इंग्लिश वाले को जर्मन के हिसाब से ट्राई करते हैं, वो भी कई बार आपस में ठीक भी होता रहता है। तो हम भी कभी कभी कुछ गड़बड़ियां करेंगे तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी राइट अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ओके, नेक्स्ट, अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं। आप रिलैक्स तो हो ना? यस सर। राइट? यस सर। हम लोगों को कोई प्रेशर नहीं है जल्दी करने का। आप चिंता मत करना कि हमको 5 दिन में करना है, सर और करा दो, सर और करा दो, सर ढपली बजाओ, हम सुन रहे हैं, इस चक्कर में मत आना। आराम से, मैं आपको, मुझे पता है आपको कितना समझ में आएगा। और जर्मन टफ बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताऊं, लॉजिकल है। मान लो कोई इतने रूल बताए, कोई ये भी कह सकता है अरे यार इतने रूल भी कोई बताने के होते हैं क्या? इतने रूल नहीं बताओ तो फिर तो गड़बड़ी करते रहोगे ना आप। सो रूल सारे एक बार में भले याद नहीं हो, लेकिन बताने तो सारे पड़ेंगे, क्योंकि रूल होंगे तो फिर आप टैली भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सारे रूल बताए आपको। कुछ अभी क्लिक करेंगे, कुछ थोड़े दिन में क्लिक करने लग जाएंगे, बट अल्टीमेटली सब ठीक हो जाएगा। और अभी मैं आपको कुछ बहुत टफ चीज नहीं बताने वाला, वापस थोड़ी रीडिंग की प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन आराम से, जितना समझ में आए उतना रीड करने की कोशिश करेंगे बस। इश, डू, एयर। कोई इसको एयर बोल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ई को तो ए बोलते हैं और फिर आर लास्ट में आए तो उसको तो आर बोलना ही है, तो इसको एयर भी बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर अकॉर्डिंग टू द रूल। S. Z. ये तो वी है और लास्ट में आर को तो आर ही बोलेंगे, तो वियर। जी। ईयर और लिखूंगा एक वर्ड, मेरा फेवरेट वर्ड है वो कैसे छोड़ सकता हूं मैं? इसको क्या बोलेंगे? ईयर। जी एंड जी। एक बार इनको वापस देखो, अगर आपको मैं बोल के इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, यस। ओके, वापस से लिखूंगा मैं, आप वापस बोलोगे इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। तो रीडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये टेस्ट ले रहा था मैं, तो रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, रीडिंग के बाद में जनरली ग्रीटिंग की बात होती है कि आपको रीड करना तो आ गया, ग्रीट कैसे करते हैं? ग्रीटिंग में एक तो हेलो, हेलो हाउ आर यू, यही तो ग्रीटिंग है। हेलो के जवाब में कोई बोलता है हेलो। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो जर्मन ग्रीटिंग ही है, लेकिन उसको अपने रीडिंग के रूल के हिसाब से पढ़ना है आपको, ठीक है? ओके, देखते हैं कैसे पढ़ते हो। हाय। ये तो इंग्लिश में, तो अगर कोई बोले कि इंग्लिश में बोलते हैं हाय, तो हम भी हाय बोल देंगे, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना। ओके,
हेलो लै पे रुकते तो नहीं हो ना, डबल कॉन्सोनेंट है। हेलो मॉर्गन टाक क्या बोल रहे हो ना इसको? टाक डी लिखूंगा लास्ट में। Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. ये जितने भी ग्रीटिंग है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कि इनमें बहुत नजदीकी वाली बात नहीं है, जनरल है। ये एफिनिटी नहीं दिखाते, कोई बहुत पर्सनल कनेक्शन नहीं दिखाते। जनरल किसी को भी कोई मिलता है, अपन चलते फिरते कहते हैं नमस्ते, फीलिंग के साथ में नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते ही नहीं तो इतने कनेक्ट नहीं होते। और आपका दोस्त सूर्य दिख जाए तो आप नमस्ते के साथ आपकी आंखें भी बोलती हैं, आपका मन करता है गले लगाऊं या जो भी है। सो ये जो न्यूट्रल है इसका मतलब है ये किसी को भी बोलते हो आप। दीज आर जनरल ग्रीटिंग्स। खा के बैठ जाएगी। गुटन मॉर्गन, हेलो जनरली दोस्तों में हेलो बाय, इसके लिए हेलो चुस, ये वर्ड आपको ज्यादा सुनेंगे दोस्तों में। हेलो चुस, कभी डबल एस दिखे कभी एस दिखे तो चिंता मत करना। चुस का मतलब है बाय, हेलो इज हाय, हेलो चुस। टाक एक्चुअली गुटन टाक ही है। गुटन टाक का मतलब है नमस्ते। डिक्शनरी में दिखोगे तो दिखेगा दिन, किसी को देखते ही कहोगे दिन तो बोलेगा रात, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुल मिला के नमस्ते निकलता है। नमस्ते, ये भी नमस्ते ही है। मॉर्निंग में आप नमस्ते बोलते हो तो गुटन मॉर्गन। एंड मॉर्निंग का मतलब है जर्मन में सुबह उठने से लेके 10-11 बजे तक, 10-11 बजे तक यू से गुटन मॉर्गन। एंड 11 बजे से लेके इवनिंग में 6 PM तक। जर्मन में PM का कोई चक्कर नहीं है, 18, 22, 24 तक बजेंगे। वहां पे AM PM का कोई चक्कर नहीं है, बट फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं 11 to 6 PM तक गुटन टाग। एंड 6 PM के बाद में लेट नाइट तक फिर गुटन आबेंड, गुड इवनिंग। लेट नाइट तक का मतलब है जैसे रात को कोई 10 बजे मिला आपसे और पार्टी 10 बजे से स्टार्ट होगी, तो 10 बजे मिलते ही तो गुड नाइट तो नहीं बोल दोगे उसको, गुटन आबेंड। सो लेट नाइट तक। एंड गुटे नाcht, दिस इज गुड नाइट व्हेन यू गो टू बेड, व्हेन यू गो टू बेड, केवल तब। और ये जनरली आप अपने परिवार वालों को बोलते हो, राइट? बहुत नजदीक है उन लोगों को ही बोलते हो आप जनरली। सो जनरली दीज आर न्यूट्रल। एंड देन sometimes you will see people saying moin. Some people say moin moin. It is also namaste. जर्मनी के इधर ऊपर की तरफ मोइन मोइन, ऊपर की तरफ मतलब जो हॉलैंड के आसपास वाला एरिया है वहां पे मोइन मोइन बोलते हैं। और जर्मनी के नीचे की तरफ बोलते हैं ग्रुस गॉट, ग्रिश गॉट। जनरली दीज पीपल आर ट्रेडिशनल पीपल और यू कैन से रिलीजियस। जैसे अपने यहां पे भी राम राम जय माता की बोलते हैं, सो ऐसे रिलीजियस पीपल वो बोलते हैं ग्रुस गॉट। और जनरली ये गुन ठाग, किसी को बार बार बोलना पड़े, टीचर है और बच्चे सुबह से शाम तक उसको नमस्ते कह के ही थका दे तो रास्ता निकालता है गुटन मॉर्गन पूरा बोलने के बजाय मॉर्गन मॉर्गन ऐसे। तो कभी कभी
ये केवल इतना ही सुनेगा आपको, मॉर्गन, टाग, आबेंड, नाक्ट। ओके, देन मोइन मोइन के अलावा कभी कभी आपको आउफ विडरजेन इस तरह के और वर्ड सुनने को मिलेंगे। आउफ विडरजेन, ये याद ना हो कोई बात नहीं, ये फॉर्मल स्टाइल है, फॉर्मल स्टाइल। ये भी सारे फॉर्मल ही हैं, जनरल है, फॉर्मल है। तो आउफ विडरजेन का मतलब भी है गुड बाय, और केवल चूस का मतलब है बाय। आउफ विडर। बिटर वर्ड बहुत सुनेगा आपको ग्रीटिंग्स में, बिटर और डंक। डंक का मतलब थैंक यू, बिटर इज वेलकम। डंक है थैंक यू, बिटर वेलकम। कभी कभी डंक शॉन, थैंक यू सो मच, कोई दिल से आपको थैंक यू बोलता है, वो हो सकता है ऐसे बोलेगा डंक शॉन, और दिल से वेलकम बोलेगा तो बिट शॉन। पूरी वार्मथ के साथ, जील के साथ में, डंक शॉन, दिल से। किसी ने आपको थैंक यू सो मच बोला तो आप भी बोलते हो यू आर मोस्ट वेलकम, पूरा दिल खोलते हो आप भी, बोलते थैंक यू वेलकम। तो ऐसा ही मिलेगा जैसा दोगे। सो डंक शॉन, बिट शॉन। कभी कभी आपको ग्रीटिंग में ऐसे सुनेगा हैव ए नाइस डे। जर्मन में कैसे बोलेंगे haben Sie schönen Tag noch, या फिर केवल schönen Tag noch, schönen Tag noch। ये बोलते हैं जब विदा होते टाइम पे, आप मिलिए फिर जाते टाइम पे schönen Tag noch मीन्स हैव ए नाइस डे, आपका दिन आगे भी शुभ हो। या फिर इवनिंग की बात है तो schönen Abend noch, हैव ए नाइस डे। आप जवाब में बोलोगे gleichfalls, सेम टू यू, gleichfalls, gleichfalls, have a nice day, gleichfalls। एक बार वापस देखते हैं, moin moin, hallo, tschüss, guten morgen, guten tag, guten abend, gute nacht। ये बाद में सिखाऊंगा ये कैसे क्यों है, ये फर्क क्यों है। grüß Gott, auf Wiedersehen, danke, bitte, danke schön, bitte schön, schönen Tag noch, schönen Abend noch, gleichfalls। ये जनरल ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है। प्लीज भी बीटा ही है ना सर, या प्लीज भी बीटा ही है ना। थोड़ा सा एक बार जोर से बोलो, प्लीज प्लीज भी बीटा ही है। बिटर, बिटर वाला पूछ रहे हो, प्लीज। अच्छा, इसका मीनिंग प्लीज भी निकलता है। बिटर के तो बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। आप डिक्शनरी में बिटर डालोगे तो हो सकता है 10 मीनिंग दिखे आपको, डिपेंड करता है। बट यहां पे हम लोग इसको ग्रीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, बिटर का मतलब ये होता है वेलकम। अब हो सकता है कि कोई बोले यार मैंने तो वेलकम का विलकॉमन देखा है, विलकॉमन। तो ये विलकॉमन तो वो होता है जो घर पे आता है तो आपको कहता है कि वेलकम, वो वाला विलकॉमन है वो तो, ठीक है। ये विलकॉमन वो अलग है, ये तो थैंक यू के जवाब में बिटर, ये वेलकम है। बस आपको एक चीज और बताऊंगा, फिर वीडियो दिखाऊंगा ताकि थोड़े आपको मजे भी आ जाएं। मजे भी जरूरी है भाई, थक जाओगे आपको। सो वीडियो दिखाऊंगा बस एक बार, ये 2-3 चीजें यहाँ पे और देख लो आप। हाउ आर यू, वी गेट्स, हाउ आर यू बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीटिंग्स में। आपने हेलो बोलते ही अगला वही पूछते हो हाउ आर यू, और रोज मिलते हो तो रोज पूछते हो कि भाई ठीक हो ना, हाँ ठीक ही हूँ। कोई कहता है बहुत बढ़िया, लॉटरी लग गई मेरी। तो जो भी है वो तो जवाब देगा, लेकिन आप तो यही पूछोगे वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेट्स। अब डिक्शनरी में आप देखोगे तो पता चलेगा कुछ और ही निकल रहा मीनिंग, उसमें नहीं जाना, आपको लर्न करना है एज इट इज। दिस इज ए फिक्स एक्सप्रेशन, फिक्स फ्रेज। यस प्लीज, कुछ पूछने वाले हो? वी गेटस भी बोलते हैं कभी कभी, वी गेटस डियर भी बोलते हैं, और वी गेटस इनन भी बोलते हैं। एक ही मीनिंग है सबका, फर्क है तो बाद में बात करेंगे। आप तो ये समझ जाओ कि अगर किसी ने आपको बोला है वी गेट्स, वी गेटस, वी गेटस डियर, वी गेटस इनन, सब का मतलब है हाउ आर यू, कैसे हो, कैसे हैं, और कैसे, सब यही मतलब है सबका। अब वो बंदा इसको कैसे बोलता है वो अलग बात है, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं।
बट पूछते हैं हाउ आर यू, आपके हालचाल कैसे हैं, और आपको हर बार जवाब इसी स्टाइल में देना है, एस गेट मी अ गुड। हालचाल ठीक नहीं हो तो झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मतलब इतना तो ऐसे ही बोलना है, एस गेट मी अ, अच्छा हो तो ही अच्छा बताना है, नहीं हो तो मत बताना। एस सर आप वी गेट डियर लिखा है, वी गेट इनन, वी गेट एस लिखना चाहिए मुझे, बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं, वी गेट एस डियर होगा, वी गेट एस इनन होगा, ठीक है, थैंक यू। सो हालचाल पूछने के लिए वी गेट्स, वी गेट एस डियर, वी गेट एस इनन, और जवाब में हमेशा एस गेट मिया, यहां तक तो फिक्स है, और उसके आगे आपके मूड का एक्सप्रेशन, आपका मूड कभी अच्छा है, कभी खराब है, कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत खराब है, तो अकॉर्डिंगली एस गेट मी गुड, गुड का मतलब है अच्छा हूं, एस गेट मी आर जेर गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, जेर गुड। इसको गुड को प्लस बोलें तो इसको प्लस प्लस बोल सकते हैं हम लोग, ये आपके मूड का रिफ्लेक्शन है। आई एम फाइन, आई एम वेरी मच फाइन, बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आप सुनाओ? हाँ, मैं भी बढ़िया। मजेदार बात यह है कि आप बढ़िया बोलते हो तो ज्यादातर सामने वाला भी बढ़िया बोलता है, सो जरूरी नहीं है हालांकि, बट एस गेट मी अ गुड, एस गेट मी अ जेर गुड, एस गेट मी तो हर बार ही रखना है आपको शुरू में, बाद में तो गुड बोलोगे तो भी चलेगा। एस गेट मी अ जेर गुड, एस गेट मी अ टॉल ग्रेट, एस गेट मी अ सुपर, एस गेट मी अ प्रीमा, एस गेट मी अ वंडरबार, वंडरबार बहुत अच्छा हो, ग्रेट की कॉन्टेक्स्ट में वंडरबार, इसका मतलब है सुपर्ब। कोई सा भी एक बोल देना, सब मत बोल देना, ग्रेट के लिए सारे ही बोल दो, कभी कोई एक बोल दो, एस गेट मी अ प्रीमा, एस गेट मी अ सुपर, एस गेट मी अ वंडरबार, वंडरफुल, और एक्सीलेंट बोलना हो तो ausgezeichnet, एस गेट मी अ आउस। ये एक्चुअली आपको पता चलेगा कि एस का रूल आपको बताया, वैसे तो मैंने एस के बाद में वोवल आए तो जे बोलते हैं, तो आउस गे साई श्नेट, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये सारे उन रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे, कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो बात अलग है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं जेर गुट, तो आपको बताया पहले जे क्यों बोल रहा हूं, एस के बाद में वोवल आए तो जे, एच बीच में साइलेंट तो जेर, जेर गुट, प्रीमा, सुपर, टॉल, आउस, गे, साई, श क्यों, क्योंकि ख नहीं बोल सकते, ख तो तब बोलते जब सी एच से पहले ए ओ यू आता, तो आउस गे शाइश नेट। तो ये क्यों मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, उसका रूल वही है, जो आप वापस एक बार देख लोगे तो आपको लगेगा कि यस वो तो सही जा रहा है, सही तो जाएगा। तो अब इसको प्लस, इसको डबल प्लस, इसको कितने ही प्लस देते चले जाओ आगे, यहां तो आपके पैर ही नहीं है धरती पे। पता नहीं क्या मिल गया आपको, पास हो गए लगते हो, नहीं पास में तो इतना ही होता है, इसमें तो कुछ और ही मिल गया आपको, आप पास भी हो गए, आपकी सगाई भी हो गई, मतलब आपको लॉटरी लग गई समझ लो आप तो, अब वो किस रूप में लगी आप जानते हो बस। सो एस गेट मी अ गुड, सगाई भी होगी इसलिए बोल दिया, कई बार किसी की नहीं होती और फिर उसकी हो जाती है तो उसमें फिर उसको लगता है एस गेट मी अ गुड। और अगर ये बोलना हो सो जो लाला, जो लाला, ये लाला जी से नहीं है इसका कोई मतलब, जो लाला का मतलब है ठीक ठाक, सो प्लस माइनस, पता ही नहीं चल रहा अच्छा हूं कि बुरा हूं, क्या बताऊं, सोचने दो एक बार। अच्छा, जो लाला सो, और अगर कोई बोलेगी नॉट सो गुड, निष्ट जो गुड, निष्ट निष्ट जो गुड, नॉट सो गुड, इसका मतलब माइनस में चला गया, हालचाल खराब है इसके। और बैड के लिए स्लैश्ड, स्लैश्ड। तो ये जो भी वर्ड लिख रहा हूं आप तो अपने रीडिंग के हिसाब से देखो, इसको याद तो हो ही जाएंगे वर्ड। श्लेष्ट, ही बोलेंगे ना इसको, श्लेष्ट का मतलब है बुरा, हालचाल बुरा है, नमस्ते भी करे तो मारने को दौड़े,
मतलब उसका बहुत बुरा हाल है. Schlecht. Gut, sehr gut, super, prima, ausgezeichnet, so lala, nicht so gut, schlecht, bad. कितने ही माइनस लगा लो उतने ही कम है. दुखों का कोई अंत नहीं है. ये सो पूछेंगे हमेशा ऐसे, वी गेट्स, हाउ आर यू, और जवाब देंगे ऐसे. सर ये जवाब देने के लिए एस गेट ही रहेगा हमेशा, या कुछ अपन उसके अलावा चेंज कर सकते हैं? हमेशा हमको एस गेट रखना है बिगिनिंग में. अगर मान लो आप थोड़े से पुराने हो जाओ, आप A1 से आगे निकल जाते हो, तो आप सीधे ही गुट डंक है, शॉर्ट में भी बोल सकते हो. ये एक तरह से पूरा सेंटेंस बता रहा हूं मैं, आई एम फाइन, और फिर डंके के लिए थैंक यू आ जाएगा अलग से, राइट. डंक है, थैंक यू आ गया उसके लिए. सो आप शॉर्ट में बोलो तो गुट डंक है. ये गुट मतलब इनमें से केवल सीधा यही बोल दो मुद्दे की बात, गुट डंक है. सो आई एम फाइन की जगह आपने इतना ही बोल दिया, फाइन थैंक यू. ऐसे भी बोलते हैं भाई. आप उबासी ले रहे हो तो क्या हुआ, सब थोड़ी उबासी ले रहे हैं. किसी को उबासी लेते पकड़ा है मैंने, अलर्ट रहना. उबासी लेते पकड़ा है मैंने, एक को दिखता है मुझे. सो गुड डंक है, शॉर्ट में गुड थैंक यू. और सामने वाले को पलट के वापस पूछना है तो शॉर्ट में und selbst. und selbst का मतलब है and yourself. और पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हो, und wie geht es dir. अपन एक काम करते हैं, वीडियो देखते हैं यार. उबासी ले ली एक बंदे ने, अब बर्दाश्त नहीं है मुझे. Excuse me, sir. Yes, please. So what does ausgezeichnet? Ausgezeichnet का मतलब है excellent. Excellent. मैं कितना खुश हूं क्या बताऊं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास. Excellent, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता. एग्जाम में पापा ने बोला था कि तू, पापा को वैसे उम्मीद थी कि मोटरसाइकिल नहीं लाके देनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने बोला तेरे 60% आएंगे तो मोटरसाइकिल ला दूंगा. तुम भी निश्चिंत थे कि आएंगे, पापा निश्चिंत थे कि नहीं आएंगे, और खुदा न खास्ता आ गए तो मोटरसाइकिल आ गई आज. सो अब क्या बताऊं, क्या खुशी है ठिकाना. पापा लाके भी खुश है, उनको उम्मीद नहीं थी, और तुम तो खुश हो ही. तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं. ausgezeichnet ये बोलना हो, और यहां पे दुखों का कोई अंत नहीं. तो स्लैश ये. सो ये ग्रीटिंग्स हैं. हम लोग जर्मन्स वास्तव में कहते भी हैं क्या, एक बार देखते हैं, अपन वीडियो में देखते हैं. जस्ट ए मोमेंट. I'm sorry, Yes. can you tell this in English? Ausgezeichnet. Excellent. Excellent means nothing better than that. You are so happy on something. बहुत खुश हो आप. So when yeah. So when do you use this? Basically, like You in what use it situation? when you are so happy. For example, you wanted to get a job. After B1, you wanted to get a job. और तुम्हारी जॉब ही नहीं लगी. You got a job in Germany, in your dream country. So you are so happy you can't express in words. You will say ausgezeichnet. Okay. Right? Means yeah, more than your expectation you got. So in that case you will say ausgezeichnet. Okay. Okay. Yes. So now I wanted to show you a video. एक बार वापस देखो इसको. Just see. Just a moment.